Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. So this case scenario is based on performance of mutual funds. So let us see scenario given in this. So we are given the details of three mutual fund schemes are given as under. Three schemes are given: growth fund, balance fund, regular fund, and overall market is given. So for these schemes, average return is given, and variance is given, and coefficient of determination is given. And for market, so average return is given 12% and its variance is also given. So now yield on 182 days treasury bill is 9%. Again we have different MCQs. So first of all we are given, so MCQ number 1, we have to calculate a Sharpe ratio of all the three funds, which is growth fund, balance fund and regular fund. Second MCQ they are asking calculate trainer ratio of all the three funds. Third MCQ they are asking calculate Jensen alpha of each fund. तो स्टार्ट करते हैं। तो अब पहले डाटा मेंशन करते हैं जो फंड्स आपको मेंशन किए हैं। सो फंड्स आर गिवन ग्रोथ फंड, then it is balance fund, and then it is regular fund, and overall market data is given। तो इनके लिए आपको डाटा मेंशन किया है, इनकी एवरेज रिटर्न आपको मेंशन की है, जिसे जनरली है RI, ये आपकी है परसेंटेज में, दिस इज गिवन 7%, 6%, यानी कि 5%, and for market return is given 12%. So then variance is given for each fund. So variance is square of standard deviation. So this is given to be 92.16. Growth fund then it is 54.76, then 40.96, and then it is 57.76. फिर आपको मेंशन किया है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फंड विद मार्केट। एक टर्म होती है आपकी कोरिलेशन। कोरिलेशन को जब हम स्क्वायर कर रहे हैं किसी का जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो किसी गिवन किसी कोरिलेशन ऑफ आई विद एम एंड दिस स्क्वायर, तो किसी गिवन को भी 0.3025, तो किसी को 0.3025 for growth fund, then 0.6561, 561, and then it is 0.9604। ये आपको मेंशन किए हैं कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट, फिर एक आपको रिटर्न भी दी है 182 डेज ट्रेजरी बिल, जिसे रिस्क फ्री रिटर्न 9% का। सो RF इज गिवन, सो लेट अस राइट RF इज 9%। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करनी है शार्प रेशो ऑफ ऑल दीज फंड्स। तो दिस इज MCQ नंबर 1। So we have to calculate Sharpe ratio. So let us see what is formula of this. Sharpe ratio है रिटर्न कितनी है फंड में माइनस रिस्क फ्री रिटर्न अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस आपको दिया है, तो पहले आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपको इन तीनों फंड्स की कैलकुलेट करनी है। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? So this will be simply square root. So 92.16 x square root 9.6. Then 54.76 x square root 7.4. Then it will go 40.96 x square root 6.4. Now we can calculate what is our Sharpe ratio. Sharpe ratio की रिटर्न है आपके पास 7 माइनस रिस्क फ्री रिटर्न है 9 अपॉन 9.6, तो ये आपकी आ रही है नेगेटिव में। तो दिस वन इज 2 डिवाइडेड बाय 9.6, तो दिस इज माइनस 0.2083। देन सेकंड रिटर्न इज 6, रिस्क फ्री रिटर्न 9 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 7.4, तो दिस इज 3 अपॉन 7.4, दिस इज कमिंग माइनस 0.4054। The next one return is given 5 minus 9 upon standard deviation 6.4. So this is 4 divided by 6.4. This is minus 0.6250. So this is for growth, balance and regular fund. You can see which option is correct. Answer is option number C. You can see answer is option number C.
So can we have second MCQ? In this case, we have to calculate the strainer ratio of all the three funds: growth fund, balance fund, and regular fund. So in MCQ number second, we have to calculate the strainer ratio. So first, let us say formula of this strainer ratio that is equal to return on fund minus risk-free return upon beta of fund. फंड और सिक्योरिटी। अब आपको बी का कैलकुलेट करना है, पर इसमें आपको मेंशन किया है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब आपका एक फार्मूला होता है कि जो आपका सिस्टमेटिक रिस्क होता है, जिसको हम कहते हैं मार्केट रिस्क ऑफ फंड। तो जिस मार्केट रिस्क ऑफ फंड इक्वल टू, इसका एक फार्मूला होता है बीटा स्क्वायर इनटू मार्केट वेरिएंस। बीटा है नहीं आपके पास, बट मार्केट का वेरिएंस है आपके पास। एंड सेकंड एक फार्मूला होता है दिस इज आल्सो इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन व्हिच इज कोरिलेशन स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मींस फंड, पर आपके पास वेरिएंस है हर सिक्योरिटी का, तो इट मीन अब आप इस फार्मूले एंड बोथ आर इक्वल, तो दोनों से आपका मार्केट रिस्क कैलकुलेट हो सकता है। तो इस फार्मूले को यूज करके हम इसका बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका बीटा का फार्मूला बन जाएगा बीटा ऑफ ए सिक्योरिटी इज इक्वल टू, you take square root on both sides, it means this is a correlation of IM into standard deviation of I upon standard deviation of M, जो आपका नॉर्मल फार्मूला है। तो नाउ लेट अस कैलकुलेट वन बाय वन। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं व्हाट आर स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप इन सबका कर लीजिए अंडर रूट, जिसे 92.16 अंडर रूट 9.6 यानी कि 54.76 एक्स अंडर रूट 7.4 यानी कि 40.96 एक्स अंडर रूट 6.4 एंड 57.76 एक्स स्क्वायर रूट 7.6। ये आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन है। देन यू कैलकुलेट कोरिलेशन ऑफ फंड विद मार्केट, यू टेक स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है 0.3025 स्क्वायर रूट 0.55 यानी कि 0.6561 एक्स स्क्वायर रूट 0.81 यानी 0.9604 एक्स स्क्वायर रूट 0.98। तो नाउ वी कैन कैलकुलेट बीटा ऑफ ईच वन। वो पीडीएस में आपके पास कोरिलेशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मार्केट का है 7.6 है, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। सो दिस इज 0.55 टाइम्स 9.6 डिवाइडेड बाय 7.6, this is 0.695. Similarly for a second, 0.81 times 7.4 divided by 7.6, this is 0.79 and it is 0.98 times 6.4 divided by 7.6, this is 0.825. So now we can calculate what is the trainer ratio. Let us see trainer ratio. So return on this fund 7 minus risk-free return is given 9 upon beta 0.695. Then return is 6 minus 9 upon 0.79 यानी कि 5 minus 9 upon 0.825. So this is also negative. So 2 divided by 0.695. So this is minus 2.88%. This will 3 divided by 0.79. This is minus 3.8. यानी कि 4 divided by 0.825. This is also negative, minus 4.85. So then you can see which option is correct. Answer is option number B is correct. Next is the third MCQ. In this case, they are asking calculate Jensen alpha of each point. अब आपको जेंसन अल्फा कैलकुलेट करने हैं। सो लेट अस सी फार्मूला ऑफ दिस वन। जेंसन अल्फा इज इक्वल टू एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न एट पर कैपम। सो एट पर कैपम अवर रिक्वायर्ड रिटर्न इज RF प्लस बीटा ऑफ फंड इंटू RM माइनस RF। इस केस में आप देखिए आपको मार्केट की जो रिटर्न है RM वो आपको मेंशन की है, जिसमें ये गिवन 12%, ये आपकी RM है। तो पुट करके वैल्यूज यू विल गेट जेंसन अल्फा फॉर ईच फंड। रिटर्न इज 7 माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न RF इज 9,
बीटा देखो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 0.695 इंटू आर एम माइनस आर एफ, आर एम is 12 minus 9, this is 3. So this will be our Jensen alpha. So required recurrent coming 3 into 0.695 plus 9, 11.05, 0825. So this is coming negative 4.085. So similarly for balanced fund, so its recurrent is 6. So this will be 6 minus RF is 9 plus beta is 0.79 into risk premium is 3. So this is 3 times 0.79 plus 9, 11.37. So our alpha is coming negative, so 5.37. Similarly for regular fund, so here return is our 5, so this will be our 5 minus RF is our 9 plus beta is given 0.825 into 3 risk premium. So this one is coming 5 minus, so this return is 3 times 0.825 plus 9. So this is 11.475. So our Jensen alpha is minus 6.475. तो ये सभी आपके अल्फा नेगेटिव में है. यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो इस एमसीक्यू में आपने देखा कि एक नया फार्मूला आपको मिला बीटा को विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. तो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस केस सिनेरियो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड. फर्दर कॉपीज वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर से. वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए. थैंक यू.